Hello everyone, welcome to Momentum IS. This is the last lecture in the series of discussion of PYQs as related to geography. Today I am going to be discussing 2017 prelims question of geography. First question, Mediterranean Sea is a border of which of the following countries? In the previous lecture I have highlighted the point that you have to locate important water bodies and their bordering areas. We have seen that how in 2021 there was a question on Black Sea, Adriatic Sea. So here the question is related to Mediterranean Sea and it is one of the most important water body with respect to geopolitics as well, geography and trade. Let's see. So the options are Jordan, Iraq, Lebanon and Syria. Now this is purely factual question. You need to remember the facts here. So, but even in this case, Iraq is an area in the Middle East. This can be eliminated here. So as soon as you eliminate this option, you have eliminated this one. But despite this, Jordan is an area that is in the proximity of Israel. But does it share border with the Mediterranean Sea? That's an issue. So let's look at the map. This is the map of Mediterranean Sea. You can memorize the countries, but try to memorize them in some logical order. For example, try to memorize them in anti-clockwise. By doing so, what you will do, you will have an order also. You can make a mnemonic for this. Mnemonic means any kind of short form that can help you remember this thing for a very long time. For example, in case of Black Sea, I gave you the mnemonic BT good for Black Sea. Similarly, you can make a mnemonic for this as well, which can help you to remember this for a longer period of time. Here you can memorize it in clockwise or anti-clockwise. This can help you give some or the other order, which can give you a rough idea about the location of various countries. Now these are very important countries: Spain, some European countries, some Middle East countries and some African countries. Here if we look, our Lebanon and Syria directly shares border. This is Iraq that does not share borders, and so does not, and Jordan also does not share border. A rough idea of this map can help you solve other questions related to this arena as well. Now this is our famous Suez Canal that is being used for trade, and this is our Strait of Gibraltar that helps to trade in European nations. So memorize such maps: Mediterranean Sea, Black Sea, Adriatic Sea, and some important choke points as well. Kerch Strait, this one, and try to use your own innovation, own mnemonics for this, because that will help you to remember this for a very long time. So this was a pretty factual question. You have to memorize such issues and continuously revise. This is the key. Once you have created such things, revision is must. Here the answer comes out to be 3 and 4. Let's look at the other question now. Consider the following statement: in India, the Himalayas are spread over 5 states only, Western Ghats are spread over 5 states only, and Pulicat Lake is spread over 2 states only. Now this is a very good question because it has clubbed the physical map with the political map of India. So you have to be very careful with respect to this question. For this type of question, what you can do is you can keep a physical map of India and a political map of India side by side. जैसे मैंने आपसे बोला था कि दोनों का print निकाल के रख लो.
इसमें आप क्या कर सकते हो, फिर कई सारे लॉन्ग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बना सकते हैं। सेम इन दिस केस ऑल्सो। तो जो फिजिकल फीचर्स हैं और जो तुम्हारे पॉलिटिकल फीचर्स हैं, यू कैन ओवरलैप देम एंड कैन कवर बोथ द थिंग्स इन एन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। यहाँ पे 3 एस्पेक्ट दिए थे, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स एंड पुलिकट लेक। नाउ लुक एट हिमालयाज। हिमालयाज यहाँ से लेकर यहाँ तक है इस टाइप से। इधर पे हिमाचल प्रदेश, देहरादून, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, अराउंड 7 to 8 स्टेट्स। So here in India the Himalayas are spread over 5 states only. Let's eliminate this option on the basis of this information. As soon as we have eliminated 2 options, but still we have to look towards the, so we now know that 3 is sure shot correct, so we don't even need to see the third option. By doing such thing you can make your question comparatively easier. By eliminating you have less info. Now this less information can be processed in a better way, and that is the power of elimination. Now let's look at the Western Ghats. Western Ghats start from here, go all the way up to here. So Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and some part of Tamil Nadu also. 1 2 3 4 5 and 6. There they have given it to be 5 states only, which is incorrect. So the answer is 3 only. So try to club your preparation. Once you have created maps, I have told you to create many maps such as of rivers, lakes, national parks, tiger reserves, rivers in this case of origin and drainage. ये जितनी भी चीजें हैं ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने बना लिया, एक बार आपने इस चीज को बना लिया, फिर आपको बार बार इसको चीज को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसी में आप बार बार वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सो वॉट एवर ट्रिक्स आई एम टेलिंग, फिजिकल पॉलिटिकल मैप लीजिए, उस पर कुछ रेफरेंस लाइन, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यू कैन ड्रॉ। सेम यू कैन डू फॉर all these things also. So by the reference of those lines that I have been talking about, by reference of such lines you can remember things for a longer time. और उसका reference भी कई बार क्या हो जाता है, questions नॉर्थ टू साउथ पूछ लिया, ईस्ट टू वेस्ट पूछ लिया। इन सच केस अगर आपकी प्रिपरेशन इसकी बेसिस पर होगी, अगर आप इंडिविजुअली करना चाहें, मैकेनिकली क्रैम करना चाहें, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मगर इफ यू बेस योर प्रिपरेशन ऑन सच बेसिक पैरामीटर्स, ये आपको लॉन्गर टाइम और मोर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दे सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड दैट मैप इज द मोस्ट एसेंशियल टूल इन ज्योग्राफी, both in prelims as well as in mains examination. Here it will help you to remember things for a longer time, and in mains it will help you to express things in a better way. So in this case we did not even have to look the third statement, but it is a lake, और मैंने आपसे बोला था कि आपको लेक वाला मैप भी करना है जिसमें सारी रामसर साइट्स होनी चाहिए और थोड़ा सा अदर लेक्स का वैल्यू एडिशन। आपने देखा कि आर्टिफिशियल लेक के बारे में पिछली बार पूछा था, रामसर वेटलैंड पे अपने आप में एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं। 2021 में देयर वर सम लेक्स ऑफ राजस्थान। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ नाउ अगेन हियर अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो अगर मैं 2017 से लेकर 21 का ट्रेंड देखूं तो क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी से एक ना एक कोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। और ट्रस्ट मी, ये मैक्सिमम बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो सही करके आएंगे। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज योर एज ऑन सच क्वेश्चंस। लेट्स सी, विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल, sometimes mentioned in the news. Why it was mentioned in the news? That it has some effect on the monsoon. While forecasting Indian monsoon, that was the news.
Which of the following statement is or are correct? An Indian Ocean dipole is characterized by difference in the sea surface temperature. Yes, that is true. Between the tropical West Indian Ocean and tropical Eastern Pacific Ocean. Now, this is not correct. Let's see how. Indian Ocean dipole has two phases. One is positive phase and one is negative phase. It is the difference in the temperature from Western Indian Ocean as compared to the Eastern Indian Ocean. When Western Indian Ocean is warmer, it is known as the positive phase, and it helps in the positive effect on monsoon. And the reverse is the case is negative, with Eastern more warmer and Western Indian Ocean as less cooler. This will have negative effect on monsoon. Now, we all know that apart from Indian Ocean dipole, there is a phenomena called as El Nino, which has negative impact on our monsoon. Now try to club these two phases here. अगर आपका पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल एल नीनो के साथ कोइंसाइड कर जाएगा तो जो एल नीनो का नेगेटिव इफेक्ट है मॉनसून पे वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा. एंड सिमिलर इज द एंड रिवर्स इज द केस विद द नेगेटिव फेज. अगर वहां पर नेगेटिव मॉनसून उसकी वजह से भी आ रहा है और इसकी वजह से भी आ रहा है, अगर ये दोनों ओवरलैप हो गए देन इट कैन कॉज मैसिव ड्राउट्स. तो जैसे मैंने आपको हर लेक्चर में ये चीज हमेशा पॉइंट आउट करी है कि क्लाइमेटोलॉजी फिनोमिना जैसे होते हैं ये जनरली इंटरकनेक्टेड होते हैं. El Nino is also climatic phenomena, IOD is also climatic phenomena, monsoon is also climatic phenomena, and you through this slide and explanation you have seen that how these three are interconnected with each other, and that's what the question was asking. First it was asking about your core understanding related to IOD, and second it was asking the relationship with the El Nino. So an IOD phenomena can influence, this is again a very broad term, can influence an El Nino impact on the monsoon. Select the correct answer using below. So this was incorrect and this was correct. So answer would be 2 only. This is how a conceptual question should be approached. First, look at the concept and closely monitor the keywords. इस केस में सिर्फ एक कीवर्ड से उन्होंने पूरा क्वेश्चन घुमा दिया. तो अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर है और थोड़ा सा अटेंटिव वे में आप स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, इन सच केसेस ट्राई टू रीड द क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स, क्योंकि ये इस टाइप के स्टेटमेंट आपको बेटर तरीके से एनालाइज करने की जरूरत होती है. नाउ दिस इज अ प्योर क्वेश्चन रिलेटेड टू मैप. मैंने आपको एक चीज बोली, ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार. पिछले उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अच्छे से करके आना है. some pet areas northeast of India, and Andaman. These are somewhat complicated as compared to other areas. इसको आप वर्ल्ड मैप वाले एरिया से लिंक करिए. वर्ल्ड मैप में आई हैव हाईलाइटेड सम इम्पॉर्टेंट एरियाज इन विच वन ऑफ देम वाज साउथ ईस्ट एशिया एंड द आसियान नेशंस. सो देखिए यूपीएससी कभी भी कोई एक क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली नहीं पूछ रहा है. पिछले में आपने देखा कि फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप को उसने इंक्लूड कर दिया. इधर उसने इंडिया के मैप को साउथ ईस्ट एशिया के मैप से एक बहुत सिंगल लाइन में रिलेट कर दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार. लेट्स सी. नाउ दिस इज अवर इंडिया, दिस इज साउथ ईस्ट एशिया, and the grouping of 10 here is known as ASEAN nation. Here these are Andaman and Nicobar Island. अगर आपको थोड़ी सी लोकेशन में कंफ्यूज होगी तो आप श्रीलंका और सुमात्रा में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ग्रेट निकोबार इज वेरी क्लोज टू सुमात्रा. दिस इज अगेन एन आइलैंड रिलेटेड टू इंडोनेशिया, बोर्नियो, दैट इज
belonging to Indonesia. In ASEAN nation, what you have to do is plot the important countries: Naypyidaw, Bangkok, Vientiane, Hanoi, Cambodia, Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta, Delhi, Narbagwan and Manila, and try to analyze the relative position of these cities with respect to each other, where they are from north to south, from east to west, which of the ASEAN nations are landlocked, किस वाटर बॉडी से ये करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक अंडमान सी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू अंडमान सी. उन्होंने मेकोंग का पूछा था कि क्या वो अंडमान सी में जाती है कि नहीं जाती. सो मेकोंग फ्लोज लाइक दिस एंड गो टू साउथ चाइना सी. तो कॉम्प्रिहेंसिवली इसको लीजिए और जो 6-7 पैरामीटर्स मैंने बताए हैं उस पे उन चीज़ों को एनालाइज करिए और पिक्टोग्राफिक मेमोरी डेवलप करिए इससे रिलेटेड. This will help you to relate this thing with other areas as well. इंडिया से रिलेटेड पूछते हैं, श्रीलंकन क्राइसिस इज वेरी मच इन न्यूज़, उस पर पूछ सकते हैं. दिस इज मालदीव्स, मालदीव्स रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं. बट इन शॉर्ट ASEAN countries and South East Asian nations are very important as far as both prelims and mains is concerned. So here if you have done the map in a better way, you could have easily solved this question. So answer is Sumatra here. Could have been confused with Sri Lanka. ये दोनों तो easily eliminate हो जाते हैं, लेकिन श्रीलंका और सुमात्रा के लिए आपको अंडमान एंड निकोबार की लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए थी, which I had pointed out in the earlier slides as well. Let's see. With reference to river तीस्ता, अगेन एक रिवर पे क्वेश्चन आ गया है. मैंने बताइए क्या क्या बोला था आपसे. ओरिजिन पता होनी चाहिए, ड्रेनेज पता होना चाहिए, एंड दिस रिवर वॉज वेरी मच इन न्यूज़. आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज पता होनी चाहिए. और ये सब कैसे करना है? ये सब करना है एक मैप पे. नाउ सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा, द सोर्स ऑफ द रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट flows through Sikkim. River Rangit originates in Sikkim and it is a tributary of river Teesta. River Teesta flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. Let's see, अगर आपके पास बहुत less information है तब भी इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है. Let's look at the option 1 and 3, 2 only. अभी मैं क्वेश्चन देख ही नहीं रहा हूँ. 1 and 3, 2 only, 2 and 3, 1, 2 and 3. तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 3 ऑप्शन को किसी तरह एलिमिनेट कर दूं तो भी मैं आ सकता हूं, अगर मैं 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूं किसी तरह तो भी आ सकता हूं. तो लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन. रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. नाउ रिवर तीस्ता डज नॉट डायरेक्टली फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल. आपको मैंने बताया आपको उसका ड्रेनेज पता होना चाहिए. इट डज नॉट डायरेक्टली फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल बट रादर merges with ब्रह्मपुत्र. तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और एज सुन एज जैसे ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ बाकी 2 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका सीधा आंसर निकल आया. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? नाउ लुक एट दिस सेकंड स्टेटमेंट. जनरली वी आर अवेयर अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेजर रिवर बेसिन, फॉर एग्जाम्पल गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र. बट हियर इट इज केस ऑफ तीस्ता. This is not such popular river that we might have memorized its tributaries. So this is a difficult statement. Knowing this would be required some in-depth knowledge. But अगर इसको हम ऐसे खेलें कि थर्ड ऑप्शन हम किसी तरह एलिमिनेट कर दिया जो कि comparatively easier था because it was very much in news, disputed between India and Bangladesh as well. ये एलिमिनेट कर दिया तो बाकी 2 स्टेटमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है. अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट. अगर पहला स्टेटमेंट था सोर्स ऑफ रिवर ऑफ तीस्ता ब्रह्मपुत्र इज सेम. नो, इट इज नॉट सेम. ब्रह्मपुत्र काफी ऊपर और वेस्ट से आती है कंपेयर टू. अगर इसको भी एलिमिनेट कर देते हम तो ये 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते. इसके थ्रू इजिली कर सकते हैं. बट ऊपर के 2 स्टेटमेंट देखे बिना सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेसिस पे वी हैव गिवन द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू इन द एग्जाम. ट्राई टू मिनिमाइज योर इन्फॉर्मेशन. जितनी लेस इन्फॉर्मेशन सामने दिखेगी उतने बेटर तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं, उतने बेटर तरीके से दिमाग लगा सकते हैं.
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो योर माइंड विल गेट स्कैटर्ड। ऐसा करके आप अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम, what is the minimum number of states with India through which you can travel including the origin and destination? तो पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। दो स्टेट्स को तो यहीं जोड़ लो। अब इस केस में ये है कि सिटीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कोहिमा कहाँ पर है और कोट्टायम कहाँ पर है। तो कोहिमा नागालैंड, कोट्टायम इज इन केरल। तो अगर सिटीज़ ही नहीं पता होंगी तो फिर तो ये क्वेश्चन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बट अगर आपको सिटीज़ पता चल गई देन यू कैन गो टू द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यू नीड टू एनरिच इट विद सम ऑफ द लाइन्स, रेफरेंस लाइन, और देखते हैं। दिस इज केरला। नाउ हियर दे कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस। यू कैन गो बाय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड नागालैंड। You can again go by Karnataka, Telangana, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम। यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आसाम एक ऐसा स्टेट है जो रिमेनिंग सारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर सकता है। तो अगर ये बॉर्डर शेयर करता है तो यहाँ पर दिमाग लगाने का काम ही खत्म हो गया हमारा। वो मेरे से नागालैंड की जगह मणिपुर पूछ ले, मिजोरम पूछ ले, त्रिपुरा पूछ ले, मेघालय, अरुणाचल, सबका पाथ मेरा सेम होगा। आई विल गो वाया आसाम। सेम केस आप मेजर स्टेट के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी। यूपी इज अ स्टेट दैट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद अराउंड 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। वो स्टेट्स पकड़िए जो ज्यादा आपके बॉर्डर शेयर करते हैं, तो देयर इज अ चांस कि आप किसी स्टेट्स को बाईपास करके निकल सकते हैं। अब आपने ऐसे 3-4 पाथ निकाल लिए, कर्नाटका, महाराष्ट्र, MP, UP, इस तरीके से निकाल लिया। नाउ द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मिनिमम नंबर। तो इसमें जो भी मिनिमम नंबर आए इसको आप प्लॉट कर लीजिए। तो हियर इन दिस केस तमिलनाडु 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे कम इस पे आ रहा है। सो हियर 5 इधर से आ रहा है, 2 हमने ये निकाल रखी हैं। The answer comes out to be 7. पॉलिटिकल मैप आपको अच्छे से करना है इंडिया का, इससे आपकी सिटीज़ की नॉलेज बढ़ जाएगी एंड इंटीग्रेशन विद द फिजिकल मैप विल ऑल्सो इम्प्रूव। वही ट्रिक, ट्राई टू ड्रॉ सम रेफरेंस लाइन्स। इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी चीज़ें पास हो रही हैं। जो सिटी आ रही है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, क्योंकि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आ रही है तो सन ओवर किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके ओवरहेड जरूर रहेगा। और सेम केस अगर ऊपर आ रही है तो सन कभी भी ओवरहेड हो नहीं सकता, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पोजीशन ऑफ द सन। ये खैर बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वी आर नॉट हियर फॉर दैट। नाउ फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स? This is the map of southern map of India. We know that Western Ghats, broken Eastern Ghats, a good link comes here at Nilgiri. इतनी basic information हम सबको होती है। Now based on the earlier lecture, what I have told you कि आपको tiger reserves, biosphere reserves and national park. Tiger reserves are around 51, national parks 103 के आसपास हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे 18 के आसपास है। इसमें 11 मैप प्रोजेक्ट के अंदर हैं एंड 7 अलग से हैं। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर इतना पता हो गया आपको तो फिर देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से होता है। लेट्स लुक एट शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, बिकॉज ये सबसे आसान होगा क्योंकि हमें सिर्फ 18 याद करने हैं। ये कहीं आंध्र प्रदेश के आसपास है, तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वी नो दैट कि नीलगिरी पे ये मर्ज करते हैं। कहीं पर यहाँ पर अगर आ जाइए इस तरीके से लिंक बन सकता है। कोई ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व अगर यहाँ पर आ जाए या कोई भी ऐसी बॉडी आ जाए, फॉरेस्ट बॉडी, तो वहाँ पर लिंक बन सकती है। लेट्स सी एट नागरहोल नेशनल पार्क।
Nagarhole is a very important national park and you should know its location. For example, Nagarhole, Bandipur Tiger Reserve, the location should be precise. ये थोड़ा सा वेस्टर्न घाट्स की तरफ है और छोटा है, so it cannot have a good link. Nallamalla forest is again in Andhra Pradesh, तो this can also not be. तो अगर एलिमिनेशन से ही कर दें तो इसके बारे में नहीं भी पता है तो भी हम डायरेक्ट आंसर तक आ सकते हैं, बिकॉज नल्लामल्ला फॉरेस्ट एंड शीशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व ये इजीली हो सकते थे, और नागरहोल क्योंकि एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में है जो कि कंप्लीट लिंक नहीं बना पाएगा. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, फॉर योर वैल्यू एडिशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. सो यस, this provides a good link between the Eastern Ghat and Western Ghat, and that is our answer. Let's move on to the last question for the day. At one place in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find the sea water recede from the shoreline a few and come back to shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes. This unique phenomena is seen at Bhavnagar, Bhimunipatnam, Chandipur and Nagapattinam. Now these are some important coastal areas. तो कोस्टल एरियाज में आपको क्या रिमेंबर करना है कि बीच क्या होंगे. नाउ इधर आपको एक इंपॉर्टेंट स्कीम है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इनसे रिलेटेड बीचेस याद रखने हैं. इसके अलावा एड सम इंपॉर्टेंट बीचेस ऑफ इंडिया सच एज गोगला बीच, दीव बीच रिलेटेड टू गोवा, दीघा बीच. ऐसे करके इसको मैप पे प्लॉट कर लीजिए तो आपको कुछ कोस्टल फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा. नाउ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वो उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ था और कई बच्चों ने इसको यहाँ से लिंक किया था. उस समय किटकैट के कई सारे रैपर्स इस तरीके से आए थे जिन पे कई सारी प्लेसेस थी. उसमें एक चंदीपुर रिलेटेड भी था जिसमें लिखा हुआ था द सी डिसअपियर्स एवरी डे बाय एज मच एज 5 किलोमीटर. तो काफ़ी बच्चों ने इसको यहाँ से कर दिया था. दिस शोज कि अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रियल लाइफ सिनेरियो से भी लिंक करने की कोशिश करें तब भी आपके पास स्कोप है कि आप कई क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो सिर्फ किताबों में घुसे रहने की जरूरत नहीं है. अ जनरल अवेयरनेस ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड हैव सम फन. जितने आप हैप्पी रहेंगे उतने कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑन द डे ऑफ एग्जाम. इधर के केस में टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन याद कर लीजिएगा. सम इंपॉर्टेंट बीच, ट्राई टू प्लॉट देम ऑन मैप एंड बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स. जैसे कई बार इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, BIS स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. नाउ दीज आर समथिंग जो आपको कभी किसी बुक में नहीं मिलेंगे. इसके लिए आपको रेगुलर जो आसपास के सराउंडिंग्स है थोड़ा सा अपनी इंक्वायरी बढ़ानी पड़ेगी. ट्यूबलाइट लगी है, इसकी क्या रेटिंग्स हो सकती हैं, हमारे कोई दूसरे अप्लायंसेस हैं उनकी क्या रेटिंग है, क्या स्टैंडर्ड है. इस टाइप से अगर एक जनरल इंक्वायरी आप बढ़ाएंगे अपने तो आपका एम्बिट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा जो प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकता है. और इन चीज़ों को आप मेंस में एग्जाम्पल्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. तो हियर इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, क्योंकि ये उस समय काफ़ी चला था तो काफ़ी बच्चों ने कर दिया था ये वाला क्वेश्चन. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. In this 5 lectures, I have tried to cover as much as possible. So now since prelims is coming, try to concentrate your preparation to the most priority areas. Geography में आप मैप के थ्रू काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियोनोग्राफी, इन पे खास ध्यान दीजिए. फोकस ऑन सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री दैट आर मोर रिवॉर्डिंग and perform well in prelims examination. I wish you all the best. For more such content, you can visit to our website momentumis.com. We have given 10 free prelims tests that can help you in prelims examination. Thank you.